اور ہر شے کا اپوزٹ اگر نہ ہو تو اس خیال کا، اس شے کا، اس وجود کا ہونا محال ہے۔ ہیگل کا فلسفہ ازداد، ہیگل فلسفی آف ڈائلیکٹکس، ہمارا پہلا لیکچر ویل آف ہیگل کی فلسفی جدلیات کے متعلق، ڈائلیکٹکس کے متعلق تھی۔ اس پر ہم نے گفتگو کی، ایک تعارفی گفتگو کی، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہیگل کا جو یہ فلسفہ ازداد ہے، ازداد یہاں مراد ہے ضد کی جمع، اور ضد کا مطلب کسی چیز پر اڑ جانا، ٹھہر جانا، ضد کرنا یہاں استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہیگل کے فلسفہ میں یہاں ضد سے مراد مقابل شے ہے، یعنی اپوزٹ ہے۔ انگریزی کی اصطلاح اپوزٹ جو ہے وہ یہاں ضد کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے، اور ہیگل نے اپنے فلسفہ ازداد میں اس پوری کائنات کا اور کائنات میں موجود ہر شے کا احاطہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک پھول کو اپنے ذہن میں اس کا تصور باندھیں، اکیلے پھول کا، تو وہ تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے ساتھ کانٹے کا تصور ذہن میں نہ لائیں۔ یہاں ویورز یہ سوال کریں گے کہ اکیلے پھول کا تصور کیوں مکمل نہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ کانٹے کو اس دنیا سے نابود نہیں کر سکتے، آپ کانٹے کو اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتے، تو اس لیے جہاں پھول ہوگا وہاں کانٹا اس کا تصور ضرور ہوگا، اور پھول کا تصور کانٹے سے مکمل ہوگا اور کانٹے کا تصور پھول سے مکمل ہوگا۔ یہاں پھول کی ضد کانٹا ہے اور کانٹے کی ضد جو ہے وہ پھول ہے۔ کیونکہ آج ہم ہیگل کا فلسفہ ازداد پڑھ رہے ہیں، ہیگلز فلسفی آف ڈائلیکٹکس پڑھ رہے ہیں، جدلیات پڑھ رہے ہیں، تو جس کو فلسفہ ازداد کے نام سے جانا جاتا ہے، اردو کی اصطلاح میں فلسفہ ازداد۔ اب اسی کے ساتھ آپ ایک دوسرا تصور غم و الم کا اگر اپنے ذہن میں لے آئیں اور اپنے ذہن میں تصور باندھیں غم و الم کا، تو جو درد اور تکلیف کا احساس دلاتا ہے، تو اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو مقابل خیال ہے، تصور ہے، وہ خوشی اور مسرت ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پھول اور کانٹے کی ہم نے مثال دی کہ غم و الم کا کنسیپٹ، تصور اسی وقت مکمل ہوتا ہے، جامع ہوتا ہے، جب ہمیں خوشی اور مسرت کا احساس اور پتہ ہو۔ جب ہمیں خوشی اور مسرت کا ہی پتہ نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، تو پھر کسی بھی صورت غم و الم کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ ہیگل کے فلسفہ کے مطابق آپ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی نظر دوڑائیں یا جس چیز کے بارے میں مرضی سوچیں، آپ کو ہر جگہ، ہر شے میں یہی فلسفہ ازداد نظر آئے۔ ہیگل کہتا ہے کہ اس دنیا کا تمام کارخانہ اور زندگی کا تمام دار و مدار اسی اپوزٹ، اسی مقابل تصور، اسی فلسفہ ازداد پر ہے۔ ہیگل کا کمال یہ ہے کہ پیرامینیڈیز سے پری سوکراٹس فلسفی، سقراط سے پہلے کا جو فلاسفر تھا، پیرامینیڈیز، ہیراکلیٹس، اور اس کے بعد ارسطو، اس کے بعد پلیٹو، تو ان تمام نے ڈائلیکٹکس پر بات کی۔ ہیگل کا کمال اور فن کی مہارت یہ ہے فلسفے میں کہ اس نے اس افتادہ، اس پرانے، صدیوں پرانے کنسیپٹ کو، خیال کو اس طرح استعمال کیا کہ اس پر ایک پورے
फलसफे की बुनियाद रखी जो तमाम कायनात और तमाम जिंदगी का अहाता करता है। जिद्दों के वजूद से जिंदगी का सारा निज़ाम चल रहा है और इंसान तारीख में जो तरक्की करता चला आ रहा है वो भी इस फलसफे अज़दाद की वजह से है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने जहन में मोहब्बत का तसव्वुर, मोहब्बत का ख्याल बांधें और उसके साथ कोई दूसरा अगर अपोजिट ख्याल नहीं आता तो ये नामुकम्मल है। यहाँ ये बात थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है, हम इसको खोलते हैं कि मोहब्बत का अकेला तसव्वुर मुकम्मल क्यों नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, वो मोहब्बत उसकी फितरी है, लेकिन अगर वही मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बच्चे का जो इखलाकी पहलू है वो दुरुस्त नहीं होगा और बच्चे के इखलाक के बिगड़ने के चांस वाजे हो जाए। लिहाजा जब माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है तो वो मोहब्बत एक खास हद तक करती है, एक खास हद से नहीं बढ़ती, बच्चे को मुकम्मल छूट नहीं दी जाती माँ की ममता और मोहब्बत की आड़ में, ताकि वो बच्चा खराब ना हो। वो इसलिए कि माँ के जहन में मोहब्बत के साथ खौफ का तसव्वुर भी जहन में होता है कि अगर मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ जाए और उस पर कोई रोक टोक ना की जाए तो वही बच्चा बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है और इवन इखलाक से भी गिर सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि मोहब्बत के साथ खौफ का उन्सर जब माँ के दिल में आता है तो वो इस खौफ के वजह से बच्चे को एक खास हद तक मोहब्बत करती है और वो अपनी इस मोहब्बत को एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ने देती। हेगल ये भी कहता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज कायम नहीं रह सकती, कोई ऐसी शय मौजूद ही नहीं है कि जिसका अपोजिट, जिसके मुकाबिल कोई शय ना हो। जिस तरह ख्याल के मुकाबल एक दूसरा ख्याल है, एक अपोजिट ख्याल है, इसी तरह हर शय, हर चीज के अपोजिट एक दूसरी चीज है। मिसाल के तौर पर अगर गर्मी का एहसास दिलाना हो तो सर्दी का एहसास जरूरी है, और इसी तरह अगर नूर का तसव्वुर मुकम्मल करना हो तो तारीकी का तसव्वुर जरूरी है, क्योंकि नूर के बगैर तारीकी बेमानी है। इसी तरह जिस तरह फूल के साथ कांटा, माँ की मोहब्बत के साथ खौफ, गर्मी के साथ सर्दी, नूर के साथ तारीकी, और इसी तरह मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि खुद मेरे वजूद के सामने आप व्यूअर्स का वजूद मुकाबल है, अपोजिट है। तो इस तरह हमने ये देखा कि हेगल के मुताबिक दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी शय नहीं, कोई ऐसा ख्याल नहीं जिसका अपोजिट ना हो, जिसके मुकाबिल कोई शय ना हो। और हेगल के मुताबिक इंसान ने और इंसान की जिंदगी में होने वाली तरक्की ने, हत्ता कि तारीख ने भी जो तरक्की की, जो अहया का सफर किया, जो इर्तका का सफर किया और इंसान ने तरक्की की, उसके पीछे भी यही जज्बाए अज़दाद है जो इंसान को आज यहाँ तक ले आया। हर चीज अपनी जिद रखती है, हर चीज अपना अपोजिट रखती है। ये हेगल का फलसफा अज़दाद है। हेगल कहता है कि अगर माँ हद से ज्यादा बढ़कर बच्चे से मोहब्बत करती और मोहब्बत के अपोजिट ख्याल, खौफ को जहन में ना रखती तो बच्चे का इखलाक बिगड़ सकता है। इसी तरह अगर हर कंसेप्ट, हर ख्याल और हर शय का अपोजिट अगर ना हो तो उस ख्याल का, उस शय का, उस वजूद का होना महाल है। हेगल ये भी कहता है कि हर तसव्वुर, हर ख्याल अपनी जिद खुद पैदा कर लेता है जब वो एक खास हद से आगे बढ़ता है। हेगल के मुताबिक जब एक तसव्वुर खास हद से आगे बढ़ता है तो वो अपनी नफी खुद पैदा कर देता है, वो अपना अपोजिट खुद पैदा कर देता है।
इसी तरह कि जिस तरह बीज जब बोया जाता है तो बीज अपने आप को फना करके, जमीन में फना करके पौधे को जन्म देता है, इसी तरह हर तसव्वुर से एक दूसरा तसव्वुर जन्म लेता है। हाँ, इसमें एक बात जरूरी ये है कि हर तसव्वुर जिससे एक नया तसव्वुर जन्म लेता है उसमें पिछले तसव्वुर की अच्छाइयाँ तो मौजूद होती हैं, लेकिन उसके जो मनफी पहलू हैं वो साथ नहीं होते। वो बीज की मिसाल की तरह जमीन में फना हो जाते हैं। ताहम उस तसव्वुर का जो मुस्बत पहलू है, जो पौधे की सूरत में जमीन से बाहर निकलकर नशो नुमा पा रहा है, वो उस नए तसव्वुर में भी शामिल होता है। और फिर इसी तरह फिर उस नए तसव्वुर पर जब तनकीद होती है तो फिर उससे एक और तसव्वुर जन्म लेता है। यहाँ मैं ये बात बताता चलूं कि मशहूर जर्मन फिलासफर फिश्टे ने कहा कि हर थीसिस अपना एंटी थीसिस खुद पैदा करता है, और जब थीसिस पर तनकीद होती है तो एंटी थीसिस जन्म लेता है। और इसी तरह आने वाले वक्तों में जब एंटी थीसिस पर तनकीद होती है और साथ थीसिस को मिलाकर, थीसिस और एंटी थीसिस दोनों को मिलाकर जो एक नई वादत यानी संथीसिस जब उससे नया तसव्वुर निकलता है तो फिर जाकर फलसफा अजदाद हेगल का पूरी तरह अमल पैरा हो जाता है। हेगल भी यही कहता है कि जब एक तसव्वुर अपनी खास हद से आगे बढ़ता है तो वो अपनी जिद खुद पैदा कर लेता है। हर नया तसव्वुर अपने साबका तसव्वुर के हर पहलू की नफी नहीं करता। हेगल कहता है कि वो सिर्फ उसके मनफी पहलू की नफी करता है। तमाम उसके जो मुस्बत पहलू होते हैं वो नए तसव्वुर में जो थीसिस से एंटी थीसिस बना है वो उसमें शामिल होते हैं। और जब थीसिस और एंटी थीसिस दोनों मिलकर एक नई वादत को यानी संथीसिस को जन्म देते हैं तो फिर उसमें पिछले दोनों के जो मुस्बत पहलू हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन जो मनफी पहलू होते हैं वो बीज की तरह जमीन में दफन होकर फना हो जाते हैं। हेगल हमें ये भी समझाता है कि तारीख के अमल को हम किस तरह जदलियाती पैटर्न से समझ सकते हैं। हेगल का ये मुद्दा है कि हम तारीख, हम हिस्ट्री को जदलियाती पैटर्न पर, डायलैक्टिक्स पर और इसी फलसफा अजदाद पर तारीख को भी समझते हैं। और तारीख जो रोज बरोज आगे की तरफ सफर कर रही है उसकी बुनियाद भी फलसफा अजदाद है, जिदों का फलसफा है, अपोजिट का फलसफा है। हेगल इस बात पर जोर देता है कि तारीख के जरिए हम अपने माहौल और ज़हन को तब्दील कर सकते हैं। तारीख एक मुसलसल अमल है जो मरहलावार तहकीक की जानिब ले जाती है, जिससे ज़हनी तौर पर फहम, आगाही और शऊर पैदा। तारीख वाक़ियात से पर्दा उठाती है और हमारे ज़हन को बनाती है, ये कहना है हेगल का। हेगल तारीख में जदलियाती अमल का जिक्र करता है, यानी इब्तदा में कोई एक थीसिस, एक ख्याल होता है। जिस तरह फिश्टे ने कहा कि थीसिस के बाद एंटी थीसिस और एंटी थीसिस और थीसिस दोनों पर जब तनकीद होती है तो संथीसिस जन्म लेता है। सेम उसी तरह हेगल ने कहा कि इसी पैटर्न पर हम तारीख को भी समझ सकते हैं कि जब एक ख्याल पर, एक थीसिस पर जब तनकीद होती है तो उससे एंटी थीसिस जन्म लेता है, और जब थीसिस और एंटी थीसिस दोनों पर तनकीद होती है और जब ये तसव्वुर मिलकर अपनी हद से बढ़ने लगते हैं और उसकी तनकीद के नतीजे में फिर एक नया संथीसिस जन्म लेता है। हेगल के मुताबिक तारीख में शख्सियतों का किरदार भी बहुत अहम है। हेगल की फिलॉसफी में तारीखी शख्सियतों के
मुख्तलिफ अदवार में जो किरदार रहे हैं उनकी अहमियत पर भी जोर देता है और हमें समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह तारीख में शख्सियतें अपने आप को बनाती हैं और किस तरह अपने आप को बिगाड़ती हैं, और इसी तरह किस तरह शख्सियतें दुनिया को संवारती हैं और किस तरह शख्सियतें दुनिया को तबाह बर्बाद कर देती हैं। हेगल कहता है कि अगरचे ये शख्सियतें ये समझ रही होती हैं अपनी दानिश में कि हम खुद ये कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हेगल कहता है कि इनमें उन शख्सियतों की नासमझी है, क्योंकि उन शख्सियतों से नेचर काम ले रही है, जिसमें उन शख्सियतों का अपना कोई अमल दखल नहीं। ये नेचर ने उनसे काम लेना था जो उन्होंने लिया, और जब एक शख्सियत से जब नेचर कोई काम ले लेती है तो उसके बाद नेचर उसको तारीख के पन्नों से गायब कर देती है या उसे इतना अहम नहीं रहने देती और ना होने के बराबर समझा जाता है। यहाँ पर हेगल अपनी किताब में 3 बड़ी शख्सियतों का, तारीख की 3 बड़ी शख्सियतों का जिक्र करता है, जिसमें एक शख्सियत नेपोलियन की है, एक शख्सियत जूलियस सीजर की है और तीसरी शख्सियत सिकंदर की है। हेगल ये कहता है कि जब तारीख में हम देखते हैं कि जब सिकंदर ने इराक और ईरान को फतह कर लिया तो नेचर के मुताबिक मजीद किसी फतह की या फतूहात की ज़रूरत नहीं थी, तो वो जवानी में ही मर गया। इसके बाद वो जूलियस सीजर की मिसाल लेता है कि जब उसने गाल और इंग्लैंड को फतह किया और सारी उम्र के लिए डिक्टेटर बन गया, तो फिर तारीख में हमें पता चलता है कि उसे कत्ल कर दिया जाता है और तारीख की हस्ती से जूलियस सीजर को मिटा दिया जाता है। इसके बाद हेगल नेपोलियन का जिक्र करता है कि किस तरह नेपोलियन ने पूरे यूरोप को फतह किया, लेकिन नेपोलियन की ये फतह भी नेचर उससे काम ले रही थी, क्योंकि यूरोप को फतह करने के बाद नेचर ने जो उससे काम लेना था वो ले लिया। उसके बाद नेपोलियन की सारी जिंदगी सेंट हेलेना की कैद, एक जजीरा है जहां वो सारी जिंदगी कैद रहा और बेनाम जिंदगी गुजारी। हेगल के मुताबिक ये शख्सियतें ये समझती रही कि ये हमारे कारनामे हैं, ये हमारी दानिश, हमारी अक्लमंदी और हमारी दानिशमंदी और बहादुरी का नतीजा था जो हमने कारनामे अंजाम दिए। लेकिन हेगल के मुताबिक ये उनके अपने कारनामे नहीं थे, बल्कि नेचर उनसे ये काम करवा रही थी, और जैसे ही वो काम मुकम्मल होता है नेचर उनको तारीख के पन्नों से हटा देती है। हेगल कहता है कि ये सब, चाहे वो जूलियस सीजर हो, सिकंदर हो, नेपोलियन हो या तारीख की और शख्सियतों के अगर हम नाम ले लें, तो ये सब तारीख के मोहरे थे, यानी ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे थे, नेचर इनसे काम ले रही थी और ये समझ रहे थे कि हम ये कारनामे सर अंजाम दे रहे। अब हम इस लेक्चर के आखिरी हिस्सा में आते हैं, जिसमें हेगल दुनिया में होने वाले हादसात को भी अहमियत देता है, और हेगल के मुताबिक जब कोई हादसा, कोई कहत, सैलाब आता है तो वो भी नेचर की तरफ से होता है, क्योंकि एक तरफ तो वो तबाही का समा पैदा करता है, लेकिन उस तबाही के बाद दुनिया में एक नया आज़म पैदा होता है, एक नया वलवला पैदा होता है और एक नई तहरीक जन्म लेती है।
यहाँ हैगल मिसाल देता है, यूरोप में जब प्लेग आया तो प्लेग की वजह से 13वीं सदी में जब यूरोप में प्लेग आया, एक मुतद्दी बीमारी जब फैली, तो जिससे यूरोप की कहते हैं कि 40% 40% आबादी जो है वो इस प्लेग की वजह से मर गई, खत्म हो गई। लेकिन हैगल कहता है कि इसके बाद रेफॉर्मेशन शुरू हुई, रेफॉर्मेशंस की तहरीकों ने काम करना शुरू हुआ, साइंस, तिब और समाजी अलूम ने जन्म लिया। और इसी तरह हैगल ये भी कहता है कि चाहे कहत हो, चाहे जल्जला हो या नागहानी आफत हो, नेचर की तरफ से वो ना सिर्फ मौजूदा वक्त को तब्दील करती है बल्कि आने वाले वक्तों में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित होती है। हैगल कहता है कि इन तमाम चीजों का मकसद ये है कि इस दुनिया में इंसान ने जो अजियतें बर्दाश्त की हैं और जो तकालीफ उठाई हैं, उनसे सबक सीखे और आइंदा के लिए तैयार रहे। तो इस तरह आज हमने कुछ मजीद फलसफा हैगल पर बात की, फलसफा अजदाद पर बात की, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में हम हैगल की फिलॉसफी को मुकम्मल करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह हैगल ने कांट, शेलिंग और फिश्ते की फिलॉसफी को एक वादत में तब्दील करते हुए किस तरह ये कहा कि नेचर और जहन और अकल एक ही चीज है, और इसके बाद वो वर्ल्ड स्पिरिट, रूह आलम का जिक्र करता है। और इन तमाम चीज़ों को हैगल सूफियाना अंदाज में खुदा कहता है कि जहन, अकल, नेचर और वर्ल्ड स्पिरिट। ये आइंदा वीडियो में इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह।